Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students, and how are your family members? Dear students, today we will read lesson number 10. Lesson number 10 is about past continuous tense. Affirmative sentences. Dear students, before it we have informed you that each and every tense has 3 sentences. One of them is affirmative sentence, and second is negative sentence, and third is interrogative sentence. Interrogative sentence has 2 kinds: interrogative affirmative sentences, interrogative affirmative, and interrogative negative. Today we will read past continuous tense affirmative sentences. After that we will read past continuous tense negative sentences, and in last past continuous tense interrogative sentences. But today past continuous tense affirmative sentences. Dear students, before reading the rule and regulation of this sentence, I mean past continuous tense, we should see the example models sentences here. आदर्शवाक्य मॉडल सेंटेंसेस. लता घर जा रही थी. लता वाज गोइंग होम. वो सो रहा था. ही वाज स्लीपिंग. वे खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग. तुम पुस्तक बेच रहे थे. यू वर सेलिंग द बुक. Now see here in this box, इस काल के वाक्यों की पहचान. In this box the writer is telling us how can we recognize the past continuous tense and what will be the symbol of this tense. Therefore writer is telling us past continuous tense के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. The writer is telling us that in the end of the past continuous tense you will find in Hindi language रहा था, रही थी, रहे थे the words. और इसमें काम का लगातार होना पाया जाता है. एंड ऑल्सो यू विल फाइंड दैट द वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूली. इस काल के वाक्यों में समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता. द राइटर इज टेलिंग अस दैट द पीरियड ऑफ टाइम विल नॉट बी हियर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, but the period of time will be in past perfect continuous tense. The rule of the translation. Now the writer is writing here the rule of the translation. Past continuous tense के वाक्यों में था, थे, थी का अनुवाद was या were से करो. The writer is telling us that if you want to translate from Hindi sentences into English sentences, so you should translate the meaning of tha, the, thi with was or were. And second, was या वर के बाद क्रिया की पहली अवस्था में ing लगाकर प्रयोग करो. And after that
you should use the first form with ing after was or verb. रूल नंबर 3, वाज या वर का प्रयोग 7वें पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो. इफ you want to use was or were in this tense, so you should use was or were according the rule and regulation that had given in lesson number 7. The rule of was and were is in lesson number 7 like this. We use was with singular subject and we use were with plural subject. अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि कोई भी टेंस हो उसके जो जुमले होते हैं वो 3 तरह के, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव. तो यहां आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत जो हम पढ़ेंगे जुमले वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के होंगे, यानी मुस्बत जुमले जिसमें नहीं पाया जाएगा. अब ये देखिए आदर्श वाक्य, मॉडल सेंटेंसेस, यानी मिसाली ये जो नमूना है, ये जुमले को दिए हैं नमूने के तौर पे, इनको देखना है, फिर इनके कायदे को देखना है, फिर एक्सरसाइज दी जाएगी. लता घर जा रही थी, लता वॉज गोइंग होम. वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग. वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग. तुम पुस्तक बेच रहे थे, यू वर सेलिंग द बुक. इस काल के वाक्यों की पहचान. अब ये बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान कैसे करेंगे. तो कह रहे हैं इस काल के वाक्यों की पहचान ये होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होंगे. यानी आप जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे तो उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जरूर पाएंगे और यही उसकी पहचान है. इसमें काम का लगातार होना पाया जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें काम लगातार होता हुआ पाएंगे आप. इस काल के वाक्यों में समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती है. कह रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त नहीं दिया हुआ होता है. हाँ, ये वक्त आप पाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ये बहस वहां उस मौके पर पढ़ी जाएगी. अब यहां अनुवाद के नियम बता रहे हैं, यानी जो आप तर्जुमा करेंगे इसके उसूल क्या है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप अगर तर्जुमा करना चाहते हैं, यानी हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाहते हैं, तो उसके कुछ उसूल हैं और कुछ कवायद हैं. उन उसूलों और कवायद का सहारा लेते हुए हम ये काम अंजाम दे सकते हैं. तो अनुवाद के नियम. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में था, थे, थी का अनुवाद वाज या वर से करेंगे. वाज या वर के बाद क्रिया की पहली अवस्था में इंग लगाकर प्रयोग करेंगे, आईएनजी लगाकर प्रयोग करेंगे. उदाहरण 1 से 4 देखिए. वाज या वर का प्रयोग 7वें पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो. 7वें पाठ इसमें यह बता रहे हैं कि वाज को इस्तेमाल करेंगे आप सब्जेक्ट के हिसाब से, वर को भी सब्जेक्ट के हिसाब से. अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, अगर जमा है तो वर का इस्तेमाल करेंगे. इन नियमों के जान लेने के बाद आइए मिसाल की तरफ हम फिर पलटते हैं और वहां इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहां देखिए लता घर जा रही थी, तो यहां इसमें देखिए सबसे पहले पहचान क्या है इसकी, आखिर में रहा था, रही थी है, तो इससे पता चला ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब इसकी हम अंग्रेजी अगर बनाना चाहते हैं, लता घर जा रही थी, तो सबसे पहले हम फाइल को लाएंगे. किसको लाएंगे? फाइल. इस जुमले में हम ढूंढेंगे तो लता फाइल है. देखिए उसकी अंग्रेजी पहले ही इन्होंने मिसाल में लिखा है, लता. फाइल के बाद में ये जो वाज वर हेल्पिंग वर्ब है उसको लेकर आएंगे और उस हेल्पिंग वर्ब को फाइल के हिसाब से लाएंगे. यानी फाइल अगर वाहिद है तो वाज आएगा, जमा है तो वर. तो देखिए लता यहां वाहिद है इसलिए वाज आया है, लता वाज. ये इतना हो गया. अब इसके वाज के बाद में
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे तो गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग होम, तो लता वाज गोइंग होम। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, वो सो रहा था, तो इसमें सबसे पहले फाइल लाएंगे ही, देखिए आया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज आया है, और चूंकि ही वाहिद है इसलिए वाज लाए हैं। फिर स्लीपिंग में आईएनजी लगा दिया, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। उसके बाद में वे खेल रहे थे, देखिए इसमें फाइल ढूंढी है, सबसे पहले तो वे है, इसकी अंग्रेजी लाएंगे आप तो दे है। अब फाइल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर आएगा क्योंकि फाइल जमा है। इसके बाद में प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो प्लेइंग हो गया, तो दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। तुम पुस्तक बेच रहे थे, यू वर सेलिंग द बुक, इसमें भी देखिए तुम पुस्तक बेच रहे थे, तुम इसमें फाइल है जमा है। उसके बाद में वर लेकर आए हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी लाए हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। तो अजीज तलबा ये इसकी तरतीब होगी। अब इसी की रोशनी में हमें कल ये एक्सरसाइज बना करके लानी होगी। एक्सरसाइज नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। मैं दिल्ली जा रहा था, वे पुस्तकें खरीद रहे थे, तुम घर से आ रहे थे, वो हंस रहा था, मधु रो रही थी, सीता गाना गा रही थी, सूरज निकल रहा था, तुम्हारा भाई मैच खेल रहा था। अब ये मुश्किल अल्फाज दिए हैं, दिल्ली की दिल्ली, पुस्तकें बुक्स, घर की होम, और से की अंग्रेजी फ्रॉम, निकल रहा था कि अंग्रेजी वाज राइजिंग, मैच की मैच। अब ये हुआ हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज है आपके पास, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। यहाँ अंग्रेजी में कुछ जुमले दिए गए हैं, उनकी हिंदी लिखनी होगी। आई वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल, माई सिस्टर वॉज बाइंग फ्रूट्स, ही वॉज लाफिंग, यू वर बाथिंग, राजीव वॉज वर्किंग हार्ड। मुश्किल अल्फाज, फ्रूट्स फल, वर बाथिंग नहा रहे थे, हार्ड कठिन। अजीज तलबा ये आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे थे, उसके कायदे को पढ़ा, उसके रूल को जाना, और फिर उसके बनाने के तरीके को जाना, और ये मिसालें आपको दी गई एक्सरसाइज नंबर 10, इसको कल करके आना है। इस एक्सरसाइज को चेक करने के बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।